Hello students, good afternoon. Hello. Hello students, good afternoon. Class 12 biology students, join the session. Yes, I can't see much students live. Yes, please be ready for the session. Yes, Alok Tiwari, Naveen Jalihal. Yes, they are there for the class. Sangeeta, Surbhi, Alok. Good afternoon everyone. Yes, assemble for the class. This session is for class 12 biology students. I'm Monica Malhotra, PGT Biology, KV Pushp Vihar, New Delhi. This is the sixth session which I'm going to take on 24th of April 2020 for the chapter 3 of your textbook, Human Reproduction. So that is a part 6. We are going to conclude this chapter today, and simultaneously I'm going to switch over to the next chapter. So yesterday we had discussed many things. We had mainly discussed about the fertilization, about the implantation, and at the end of the session, we were discussing about the process of parturition. So just for a quick recap, what all we discussed yesterday, I want to see whether you have revised that or not. Yes, join in for answering these questions. Yes, now question number 1. Question number 1 goes like this. The most correct sequence of early development of the embryo following fertilization is, so which is the correct sequence? Option A is zygote, blastomeres, morula, and blastocyst. You have to guess the correct sequence in which these stages are formed. Option B, oocyte, zygote, morula, and blastocyst. Option C, zygote, follicles, oocyte, and blastocyst. And then the option D, polar bodies, zygote, Graafian follicle, and blastocyst. Which is the correct sequence? Yes, come up with the correct answer. Most of the students are saying oocyte, B option. Most of them are giving option B. See, in the B option, I must tell you, it starts with oocyte. And in the question, it says that the sequence of early development following fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेजेस ही होनी चाहिए सीक्वेंस में, फर्टिलाइजेशन से पहले की नहीं होनी चाहिए. और आपको पता है जो oocyte स्टेज है वो तो अभी सेकेंडरी oocyte बनने से पहले की स्टेज है. सेकेंडरी oocyte तक तो अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं होती है ना. सेकेंडरी oocyte जब ooted में कन्वर्ट होता है तब फर्टिलाइज होता है वो. So this cannot be the stage after fertilization. So yes, correct option is not B beta. Think about it. Fertilization के एकदम बाद क्या बनेगा? Yes, fertilization के एकदम बाद जाइगोट बनेगा. ठीक है ना. देखिए आपने ए ऑप्शन देखी ही नहीं है किसी ने. ए ऑप्शन क्या कहती है? फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, जाइगोट में हुआ क्लीवेज, क्लीवेज के बाद जब 2 सेल 4 सेल 8 सेल बने उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स, और उसके बाद मोरुला बना और मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनी. So A part is correct. No, you people are not giving. Yes, Kshitij Tomar has given the correct answer. A part. निमिषा ने सही दिया, प्रिंस ने सही आंसर दिया, नवीन जालिहल, आकांक्षा नो. सो नवीन तक मेरे को जितने आंसर्स मिले हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है वो. ठीक है. यस, विद्या इज ऑल्सो गिवन करेक्ट आंसर, सुरभि इज ऑल्सो गिवन करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. पहले जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट की क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स के बाद मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट. So that is the correct sequence, A part. Now we come to the second question, the extra embryonic structure. Now this term is very important. I am not asking about membranes. I am asking about structure. The extra embryonic structure that provides nutrition to the embryo is option A, chorion, B, placenta,
C, amnion, and D, all of these. Yes, think about it. Extra embryonic structure, ठीक है, यहाँ मेम्ब्रेन नहीं है, स्ट्रक्चर है। तो कौन सा स्ट्रक्चर है भाई इसमें? यस, राजीव महेश्वरी हैज गिवन, अच्छा सपना, सपना हैज गिवन द करेक्ट आंसर बी, राजीव महेश्वरी। निमिषा, सभी ने बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही बताया आपने। सुरभि, नवीन, सरिता, पवन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, प्लेसेंटा। तो ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। यस, मिथिले, ये राजकुमार, हरिओम, नेहा, सुनीता, क्षितिज, सिंधु, सबने सही आंसर दिया है। विद्या, ज्योत्सना, ऋचा, यस करेक्ट, सबका सही आंसर है, इट इज प्लेसेंटा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. In the absence of acrosome, the sperm cannot. अगर एक्रोसोम नहीं होगा या फंक्शनल नहीं होगा तो स्पर्म क्या, इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकता? ए पार्ट, पेनिट्रेट इनटू द एग, बी पार्ट, गेट एनर्जी, सी ऑप्शन, गेट फूड, ऑप्शन, स्विम। इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम? यस, कम अप विद द करेक्ट आंसर। यस, अब बताइए मुझे सही आंसर क्या है इसका। इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम व्हिच एक्टिविटी विल नॉट बी परफॉर्म बाय द स्पर्म? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। अभी तक आप पिछले क्वेश्चन का ही सही आंसर दिए जा रहे हैं, अब आप नए क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन 3 पे आ जाइए। यस, पंकज, राजपूत, क्षितिज, राजीव, सुरभि, दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर। तनु, शिवानी, यस, सुनीता, बिल्कुल सही। यस, खुशी ने पिछले क्वेश्चन का सही आंसर दिया। संगीता, आकांक्षा, सुरभि, रोहन, राज, सरिता, नेहा, धनिष्ठा, संगीता, yes, you all people are correct, all the students are correct. Penetration into the egg, it can't perform in the absence of acrosome. Now we move on to question number 4. Yes, खुशी, दृष्टि, संगीता, सुनीता, सब सही हो बेटा, सुषमा, सब सही हो। अब आप आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4. The uterine layer which undergoes strong muscular contractions for the process of parturition are is option A, endometrium, option B, perimetrium, C, myometrium, D, both A and B. इनमें से करेक्ट क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन कौन सी लेयर अंडरगो करती है, या क्या ये दो लेयर्स अंडरगो कर सकती है, ए और बी एक साथ? सोचिए। So the correct answer for this question is yes, myometrium. दृष्टि चतुर्वेदी is the first to answer. Yes, उससे पहले निमिषा ने भी सही आंसर दे दिया था। राजीव महेश्वरी, वेरी गुड। ज्योतिका, सुनीता, नवीन, यस यस, तनु, अर्चित, रोहन, रमेश, आशीष, सिंधु, क्षितिज, नो, प्रिंस, इन सभी ने, सुरभि, त्याशा, सरिता, बिपाशा, सबने सही आंसर दिया बेटा। श्यामलाल, यस, all are correct. मोहम्मद मोहसिन, सही है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। नाउ वी कम टू द स्लाइड विच वी वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे, पार्चुरेशन। मैं आपको बता रही थी ये कि एवरेज ड्यूरेशन जो है ह्यूमन प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स होता है, इसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। और विगरस कंट्रैक्शंस होने लगती हैं यूट्रस में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सो दैट द फीटस इज डिलीवर्ड आउट। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस और द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ध्यान से स्पेलिंग देखिए, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फुल्ली फॉर्म्ड यंग वन, ओके। ना पार्चुरेशन को इंड्यूस कैसे किया जाता है, हाउ इज इट स्टिमुलेटेड, कैसे इंड्यूस होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर इसको कंट्रोल करता है। और इसके जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? इसके सिग्नल्स फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स से ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स ओरिजिनेट करता है सिग्नल्स, और इससे धीरे धीरे माइल्ड कंट्रैक्शंस मायोमीट्रियल लेयर में शुरू हो जाती है यूट्रस की, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी कि फीटस अपने ही इजेक्शन के लिए, अपनी ही डिलीवरी के लिए एक रिफ्लेक्स दे रहा है, एक स्टिमुलस क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पार्चुरेशन का स्टिमुलस कहां से आता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से आता है। अब हम इसके बारे में थोड़े हार्मोन्स का कंट्रोल देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं पार्चुरेशन के प्रोसेस को। Fetal ejection reflex, it triggers, means stimulates the release of oxytocin hormone from the maternal pituitary gland.
आपको पता है ऑक्साइटोसिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्साइटोसिन इज सिक्रीटेड एंड इट कम्स टू ब्लड। और उसके बाद ये सीधा जाके यूट्रस के मसल, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है। कौन सी लेयर में होते हैं यूट्रस के स्मूथ मसल्स? यस, इन द मायोमीट्रियल मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग के मिडल लेयर में मिडल लेयर कौन सी है? मायोमीट्रियम, उसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और ऑक्साइटोसिन के एक्शन से स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहले माइल्ड कंट्रैक्शंस होते हैं, फिर दे टर्न इनटू स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रैक्शंस, आगे चल के और स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाते हैं वैसे वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर से स्टिमुलस मिलता है, एक पॉजिटिव स्टिमुलस मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि वो और ऑक्साइटोसिन को सिक्रीट करे। So more vigorous the uterine contractions, more is the release of oxytocin from the pituitary gland. Okay, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, and it results in stronger and stronger uterine contractions. इतनी स्ट्रांग हो जाती है कंट्रैक्शंस कि जो फुल टर्म एम्ब्रियो है, जो यंग वन टू बी डिलीवर्ड है, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग से डिटैच होके बर्थ कैनाल में से इट इज गिवन आउट। ओके, अब ये पूरे प्रोसेस में सिर्फ ऑक्साइटोसिन का रोल देखा हमने कि वो यूटेराइन कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर रहा है, राइट। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके फंक्शन के बिना ये प्रोसेस पार्चुरेशन का पूरा ही नहीं हो सकता। दिस हार्मोन इज रिलैक्सिन, ठीक है। तो दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्चुरेशन के प्रोसेस में। पहला हार्मोन ऑक्साइटोसिन, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि ओवेरियन हार्मोन है, और इसको ओवरी और प्लेसेंटा दोनों ही रिलीज करते हैं। इसका काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, रिलैक्सिन का काम है रिलैक्स करना। किसको रिलैक्स करेगा? इट विल रिलैक्स द लिगामेंट्स इन द पेल्विस। तो पेल्विक बोन्स जो आपस में लिगामेंट से अटैच्ड है, कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स पेल्विक बोन्स को आपस में अटैच किए हुए हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस की बोन्स, उनको धीरे धीरे उसके लिगामेंट्स को रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स कर देगा। जैसे ही पेल्विस की बोन्स, इनके बोन्स के लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे तो पेल्विस जो है वो वाइडन अप हो जाएगा, राइट। और साथ ही सर्विकल कैनाल भी सॉफ्ट हो जाती है और वाइडन हो जाती है। These two events are very important for the process of childbirth. So what relaxin does? It relaxes the ligaments of the pelvis, and it also softens and widens the cervical canal. Okay. So cervical canal, you know, it is a birth canal. This leads to the expulsion or giving out of the baby out of the uterus through the birth canal, and the process is called parturition. जैसे ही इन्फेंट डिलीवर हो जाता है तो जो प्लेसेंटा, जो उसके न्यूट्रिशन का सोर्स था, ये भी एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द सेम बर्थ कैनाल, एंड द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा आउट ऑफ द बर्थ कैनाल आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड के बर्थ के बाद प्लेसेंटा के टिश्यू दे आर गिवन आउट ऑफ द बॉडी, सो दे आर आल्सो कॉल्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं पार्चुरेशन को। ऑक्साइटोसिन हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये मायोमीट्रियल लेयर के मसल्स को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। देन रिलैक्सिन हार्मोन, ये ओवरी और प्लेसेंटा से रिलीज होता है, और इसका काम है पेल्विक बोन्स के लिगामेंट्स को रिलैक्स करना और सर्विक्स के कैनाल को, सर्विकल कैनाल को सॉफ्ट बनाना और उसको वाइडन करना, सो दैट द young one or the full term young one can be easily delivered out from the birth canal. Okay, so process of parturition is over. Yes, after this, yes, Prince is asking what happens when the relaxin is in less concentration. Yes, if the relaxin is in less concentration, then pubic symphysis will not widen up. Okay, इसका लिगामेंट्स रिलैक्स नहीं होंगे, पेल्विक जो गर्डल है वो वाइडन अप नहीं होगा, और जब तक वो वाइडन अप नहीं होगा तो नेचुरली, नॉर्मली द चाइल्ड बर्थ कैन नॉट हैपन. Okay, then artificially this relaxin hormone is to be given to the patient, and so that the ligaments of the pelvic bones, they can be relaxed. Okay, so next process is lactation. The mammary glands of the female, they undergo differentiation during the stage of pregnancy only, and then this immediately start producing milk after the process of parturition. Okay,
So towards the end of the pregnancy, sometimes after the process of parturition, the mammary glands, they are stimulated to produce milk, and the process is called lactation. Milk produced in the initial few days of the lactation, it is called colostrum. Okay, ये yellowish fluid होता है, pale yellow fluid, and this is called colostrum. It is very, very important for the child to feed because it contains many antibodies. It contains several antibodies which are very much essential for the development of resistance in the newborn babies. जो innate immunity हमारे में होती है, that is because of colostrum. Okay, it helps the newborn babies to fight against wide range of diseases. Okay, and the antibody it contains in it, it is IgA type. ये आप चैप्टर नंबर 8 में जाकर पढ़ेंगे. ठीक है, IG means immunoglobulin, A is the type of antibody. तो ये कोलेस्ट्रम में होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाइल्ड में इम्यूनिटी रेज करने के लिए. Okay, after the lactation, now we come to the assignment for this chapter. I hope this chapter is clear. If anything is not clear to you, if you still some doubt is remaining, you can put a question in the comment box and I will answer it. Now we come to the assignment part of it. Okay, in the assignment, the question number 1 is, what is colostrum? What is its significance to the newborn baby? Just now we have discussed. So what is colostrum? It is a milk produced within the initial few days after parturition. The mother produces yellowish toned milk and this milk contains many antibodies. Significance क्या है newborn baby के लिए? इसका significance है it provides innate immunity to fight against many diseases, right? It increases the immunity in the newborn baby. Nourishment तो देता ही है, साथ में हमेशा के लिए immunity generate कर देता है newborn baby में. Okay, so after this question, we move on to the second question. This you people can easily answer. Yes. Question number 2. 3 of the steps of neuroendocrine mechanism in respect of parturition are mentioned below. 6 steps में हमने parturition के process को बांटा है. उसमें से 3 steps हमने बता दिए हैं और 3 sequential steps आप guess करेंगे. आप बताएंगे. Write the missing steps in proper sequence. Step number 1. Signals originate from fully developed fetus and placenta. ठीक है, पार्चुरेशन प्रोसेस कहां से शुरू होता है? सबसे पहले जब वो फीटस पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है तो वो सिग्नल्स छोड़ता है, सिग्नल्स रिलीज करता है और प्लेसेंटा से भी सिग्नल रिलीज होते हैं. ये सिग्नल रिलीज होने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यस, क्या बोलते हैं इन सिग्नल्स को? सेकेंड स्टेप में वही आएगा, बताइए. ये सिग्नल्स जब ओरिजिनेट होते हैं तो कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट होता है? बी पार्ट में वही रिफ्लेक्स का नाम आएगा. गेस इट, आंसर इन द कमेंट बॉक्स. Yes, I am waiting for your answers, students. Answer the B option. What you will fill in the blank of B? कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट करता है फीटस? बताइए. I am not seeing much students answering. बहुत कम स्ट्रेंथ है आज बच्चों आपकी. आपको लगा कि ये चैप्टर फिनिश हो गया? नो, दिस चैप्टर इज स्टिल रिमेनिंग. ओके, बी पार्ट में आएगा. यस, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ओके, जैसे सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं फीटस से और प्लेसेंटा से, एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है विच इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ओके, तो बी पार्ट में आएगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. डोंट वरी, आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, so don't be in a hurry to note down the answers. Okay, now in the C part, एक बार फीटस ने अगर अपने इजेक्शन के लिए रिफ्लेक्स दे दिया है तो इसके बाद क्या होगा? सी पार्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट सीक्वेंशियल इवेंट क्या होगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आगे कौन से हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है? यस, बताइए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा भाई इसके बाद? Yes, many of the students, yes, you have given correct answer, very good. Rasna, Akash, no, Alice, Sunita, Danishta, yes, बिल्कुल सही. राजीव ने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया इसका. सी पार्ट का सही आंसर दे दिया इसने. इट इज द रिलीज ऑफ ऑक्साइटोसिन हार्मोन. यस, तनिष्का, राज, यस, इन सब ने सही आंसर दिया है.
आफरीन, श्याम, अर्पिता, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। यस, ऑक्साइटोसिन, सत्यम बिल्कुल सही बताया। ठीक है, सुरभि ने सही आंसर दिया, एलिस ने सही, आफरीन बिल्कुल सही। ठीक है, सब बच्चे सही बोल रहे हैं। सी पार्ट में आएगा रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्साइटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए यहाँ हिंट मिल रहा था आपको। डी पार्ट में क्या है, ऑक्साइटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रैक्शंस। इसके बाद क्या होगा, यूटेराइन कंट्रैक्शन स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्साइटोसिन। लास्ट में क्या होगा, जब ऑक्साइटोसिन का बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, कंट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, तो फिर एफ पार्ट में क्या आएगा, लास्ट इवेंट क्या है भाई। यस, ज्योतिका बिल्कुल सही बेटा, शिल्पी बिल्कुल, नवीन, जमीला खातून, श्याम बिल्कुल सही, साकिब चौधरी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो ऑक्साइटोसिन, संगीता यादव सही है ऑक्साइटोसिन, पंकज ने सही बोला ऑक्साइटोसिन। पर आगे बताओ ना, एफ पार्ट में क्या आंसर आएगा, लास्ट में बताओ, लास्ट इवेंट क्या रह गया, फाइनल इवेंट क्या है, बताइए। एफ पार्ट में क्या आएगा, यस, एफ पार्ट में आएगा एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, expulsion of the baby from the birth canal, this is the final event of the process of parturition. Yes, Hariom has correctly answered parturition, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब आप समझ गए। यस, निमिषा, डिटैचमेंट हो गया एंडोमेट्रियल लाइनिंग से एंड पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। आपको यहाँ प्रिसाइजली यही लिखना है कि द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल और प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन will occur. यस, रसना, धनिष्ठा बिल्कुल सही बोला आपने, सुनीता, सुरभि, प्रिंस बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। यस, सुनीता सही है, आकाश बिल्कुल ठीक, नेहा पोखरियाल, साकिब चौधरी सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, जमीला खातून सही है, राजीव बिल्कुल ठीक, एलिस, तो यू पीपल आर करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इट इज बेस्ड ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर आपकी एनसीईआरटी बुक की फिगर है और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 1, स्टेट द लेवल्स ऑफ एफएसएच, एलएच एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंपली बाय मेंशनिंग हाई और लो। ठीक है, आपको बताना है कौन सा हार्मोन हाई कौन सा लो, लेकिन कब बताना है, 13 टू 14 डे में भी बताना है और 21 टू 23 डे में भी बताना है। तो पहले हम 13 से 14 डे के बारे में बात कर लेते हैं। 13 14 डे पे एफएसएच का लेवल हाई होता है या लो, फिर आप हाई या लो लिखकर, एफएसएच के आगे हाई लो लिखकर बताओ। यस, नाउ आंसर दिस। ये जो बच्चे पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन बाय बर्थ, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं, इसको डिटेल में लिख के बताइए। ओके, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सिजेरियन। ओके, सो दैट इज द कंडीशन जो आप मुझे पूछ रहे थे कि अगर रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, ऑक्साइटोसिन अंडर प्रोड्यूस रह जाता है, कोई रीजन है जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो का जो पोजीशन है इन द टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल इट इज नॉट करेक्ट, head should point towards the birth canal and the tail region should be towards the upper side. If the position is not correct, then the normal parturition cannot happen and then there has to be, it has to be operated out. Okay, तो ये सब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक है क्वेश्चंस। यस, ये बच्चों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया। आपने मेरे को बताया कि 13 से 14 डे पे एफएसएच हाई है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सबने, वेरी गुड। एफएसएच का लेवल हाई है 13 से 14 डे तक। एलएच का लेवल बताइए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यस, वेरी गुड नेहा, बता दिए ऐसे कि एलएच भी हाई रहता है 13 14 डे तक, एलएच भी हाई रहता है, एफएसएच भी हाई रहता है। और प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल 13 से 14 डे आप देख रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कितना लो है, देख रहे हैं आप, ये 13 से 14 डे है, प्रोजेस्ट्रॉन इज वेरी लो, एलएच इज वेरी हाई, एफएसएच इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है, अब हम 21 से 23 की बात कर लेते हैं। यस, निमिषा, ज्योत्सना, विद्या, राज, प्रिंस सब सही कह रहे हो, सबने सही आंसर दिया है, सुनीता सही आंसर दिया है। अब हम बात करते हैं 21 से 23। यस, आंसर देना शुरू कर दिया आपने, प्रिंस, सुनीता, आकाश सबने बोला लो, सुरभि लो, बिल्कुल ठीक। अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, 21 से 23 डे तक एफएसएच का लेवल लो रहेगा, एलएच का लेवल भी लो रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। देखिए हम यहाँ सीक्वेंस देखें जरा, 21 से 23 डे कहाँ आ रहे हैं, यहाँ 21 से 23 देखें ऊपर, ये देखिए एफएसएच का लेवल कितना लो है, एलएच का लेवल लो, एफएसएच का लो, और ये प्रोजेस्ट्रॉन देखो, यस ये बिल्कुल पीक शो कर रहा है।
तो 21st 23rd डे तक प्रोजेस्टेरॉन की पीक दिखाई दे रही है। समझ आ रहा है आपको इस डायग्राम से? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम देखकर ही आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द अबव मेंशन फेजेस डज एग ट्रेवल टू फेलोपियन ट्यूब? बताइए कौन से फेज में एग जो है फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है? अब आप यहाँ देख रहे हैं ओव्यूलेशन हो रही है, यहाँ ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल ओव्यूलेशन हो गई, इसके बाद ही यहाँ से एग रिलीज हुआ है और इसके बाद ही फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। तो ये कौन से फेज में पहुंच रहा है उसके बारे में आंसर दीजिए। इन विच फेज? हाँ बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दे दिया बेटा, वेरी गुड। 21 to 23 प्रोजेस्टेरॉन हाई, एफएसएच लो रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है। जब प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो एफएसएच को लो होना ही है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब बताइए आप कौन से फेज में एग ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा? ये पहुंचेगा एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, जिसको हम अलग से हमने बात की थी। यस, फॉलिकुलर फेज के एंड में ये ओव्यूलेशन हो जाती है, इसे हमने अलग से ओव्यूलेटरी फेज के फॉर्म में भी पढ़ा था, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हो जाती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच गया। तो आप एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज भी लिख सकते हैं और ओव्यूलेटरी फेज भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है। आपकी बुक में ओव्यूलेटरी फेज अलग से नहीं बताया हुआ, तो एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज इज करेक्ट। Why there is no menstruation after fertilization? Now the next question. Yes, बताइए। फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं होती? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन चुका है, उसकी इम्प्लांटेशन हो चुकी है और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव हो चुका है, ये प्रोजेस्टेरॉन को सिंथेसाइज कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल ब्लड में रहेगा, वो इनहिबिट करेगा एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को, ठीक है। इसका मतलब FSH LH will remain low if the progesterone is secreted by the corpus luteum, right? जब तक FSH LH लो रहेंगे तब तक ओवरी में कोई नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, और अगर ओवरी में नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल विल आल्सो बी एट अ रेस्ट, इट विल बी अरेस्टेड फॉर द टाइम बीइंग टिल द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन अकर्स, ओके। तो इसका आंसर आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए। Menstruation does not occur during pregnancy upon fertilization due to high level of progesterone secreted by the persisting corpus luteum and the placenta. Okay, so all the answers are given over here. You can refer to this answer sheet for getting the answers of those questions. Okay, so next we come to the fourth question. A sperm fertilizes a human egg in the fallopian tube. You all know, in the ampulla region. Trace the events. ये 5 marks में या 3 marks में question आ सकता है. Trace the events that the fertilized egg will undergo up to implantation of blastocyst in the uterus. यानी कि आपको इवेंट्स कहां से बताने शुरू करने हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद से, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद से, ठीक है। कब तक बताने हैं? जब तक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ और वो इम्प्लांट हो गई इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, और अगर ये 5 मार्क्स में आएगा तो इसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। ये 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो इसमें दो चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे, क्लीवेज of the zygote and the formation of blastocyst, and finally the implantation of blastocyst in the endometrium. तो cleavage में आप क्या बताएंगे? Fertilized egg, it starts dividing by specific, यहाँ by आना था, sorry, specific mitotic division called cleavage. Zygote undergoes mitotic division in the isthmus of oviduct to form daughter cells, ठीक है, and the cells formed as a result are called blastomeres. तो blastomer की formation हो रही है। 3 to 4 days after fertilization, morula turns into 16 to 32 cell stage called blastocyst. Blastocyst में या blastula में outer peripheral cells they form trophoblast, and the inner cells they form inner cell mass. The embryonic stage with blastocele, which is called blastula or blastocyst, it is implanted in the endometrium of uterus. So यहाँ तक आपको explain करना है ये along with the diagram if it is given as in 5 mark question. अगर डायग्राम नहीं पूछा है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना ही बताना है। आई होप नाउ यू नो हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रेफर टू द क्वेश्चंस गिवन एट द in the NCERT book at the end of this chapter, and start attempting those questions in your copies. Okay, if you find any difficulty, you can post me a comment and I will answer that. Okay, that ends our chapter 3, human reproduction.
And as we have much time left, we'll switch over to the next chapter in the same session, chapter 4. I will just give you a brief introduction about this chapter, and the main part of this chapter we will deal tomorrow. So here I start with the first session of chapter 4, reproductive health. It is the part 1 which I am going to start with. Yes, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. Very good. Okay. Some of the students are asking why do miscarriage occurs. Miscarriage के बहुत सारे reasons हो सकते हैं. It can be some defect in the fetus, some chromosomal abnormality can be there, and it can also be the reason कि implantation जो है precisely नहीं हुई है, बहुत ही superficial हुई है, और उसके बाद जैसे ही वो grow होने लगा, size increase हुआ fetus का, तो वो detach हो गया endometrium से and it falls in the uterus. There can be so many reasons. Even the fetus can undergo some infection, सम वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से उसका ऑटो एबॉर्शन हो सकता है. तो बहुत सारे रीजन होते हैं मिसकैरेज के. इट्स अ वास्ट थिंग. तो ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, फिर भी मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है. ओके बेटा, आपको मेरे नोट्स मिल सकते हैं या फेसबुक पे लिंक प्रोवाइडेड है जिसपे जितने मैंने आपको अभी तक पीपीटी दिखाई हैं वो सभी वहां मेरे लेक्चर्स के साथ दी हुई है. ठीक है, सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी होगी. पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का ये खबर रखती है, ख्याल रखती है. जैसा कि अभी आपने देखा कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक जो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, उसमें सारी गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ से ही आ रही है. ठीक है, कहाँ क्या हो गया, क्या स्टेटस है, क्या हमें सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए, वो सब डायरेक्शंस डब्ल्यूएचओ से आ रही है. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है. इन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, behavioral aspect and social aspect. So only the physical well-being is not important for the reproductive health. The individual also has to be emotionally well. Behaviorally he should be very well, he should be stable in his behavior, and he should be socially well. Okay, तो ये चारों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए. राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज फ्रेम की गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड ओवर और स्पेशली इंडिया में. ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ये हेल्थ केयर का, जिसमें वो ऐसे प्रॉब्लम्स को दे थिंक ओवर द प्रॉब्लम्स एंड दे प्रोवाइड द स्ट्रैटेजीज. और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, कुछ एनजीओज भी हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस डायरेक्शन में काम करती हैं, और बहुत सारा उनका जो काम है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में सोसाइटीज में हेल्प करता है. राइट, तो इंडिया जो है उन बहुत फर्स्ट कंट्रीज में से है जो सबसे पहले जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस को जाना और फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया. ये प्रोग्राम 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया था, फैमिली प्लानिंग, बिकॉज एट दैट टाइम द पॉपुलेशन, after gaining independence, the population started increasing geometrically. Geometrically means very fast. ठीक है, बहुत जल्दी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और इतनी पॉपुलेशन आउटबर्स्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी चिंता उनको हुई कि भाई पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ेगी तो रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाएंगे. इसीलिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग जैसा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया. ठीक है, और आपको पता है कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, ह्यूज नंबर ऑफ सिबलिंग्स would be were there in a single family. तो इसीलिए उसको देखते हुए इन्होंने फैमिली प्लानिंग का एक स्टार्ट किया इनिशिएटिव. ठीक है, और आपने ये स्लोगन सुने होंगे, हम दो हमारे दो. तो दे फोकस्ड ऑन 2 children norm. ठीक है, reproductive health in a society forms a crucial part of general health. If a society is reproductively healthy, then of course general health of the society will also be good, and the crimes and all the ill aspects of the society will be very less. Okay, बहुत ही प्रोडक्टिव होगी ऐसी सोसाइटी जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है. राइट, नाउ improved programs covering wider reproductive related areas are currently in operation.
ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन पे फोकस कर रही है और उस पर बहुत सारे काम कर रही है। और ऐसे जो एरियाज हैं उनको एक पॉपुलर नाम दिया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, आरसीएच प्रोग्राम्स। इसका फुल फॉर्म आ सकता है आपको, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट। इसके अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं, मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन यंग लोगों की, ये इस प्रोग्राम का हिस्सा है। चाइल्ड मैरिज को बंद कर दिया गया, इसको लीगलाइज कर दिया गया कि जो मैरिजेबल एज है वो 18 इयर्स एंड अबव है फॉर फीमेल्स एंड 21 इयर्स एंड अबव फॉर मेल्स। ओके, तो ये मैरिजेबल एज जो एक डिसाइड की गई, इसने चाइल्ड मैरिज जैसे जो अब्यूजेस थे हमारी सोसाइटी में उसको खत्म कर दिया और इससे पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। ठीक है, चाइल्ड बियरिंग एज, इट आल्सो हैज टू बी इन ऑप्टिमम एज। सो ये कैसे इन्होंने डिसाइड किया, इस चाइल्ड बियरिंग एज जो ऑप्टिमम एज है उसके हिसाब से ही मैरिज की एज को लीगलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही एक मेच्योर स्टेजेस हैं, बहुत ही मेच्योर डिसीजंस हैं जो एक सोसाइटी ने किसी एक सोसाइटी की गवर्नमेंट ने किए हैं वहां की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, फीचर्स फॉर मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, द लीगलाइज मैरिजेबल एज, द लीगलाइज चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे सोसाइटी में अवेयरनेस फैला रही है, कैसे हमें अवेयर करती है, बहुत सारे ऑडियो विजुअल मेथड्स हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट में पूरा जो इसका हायरार्की है हेल्थ केयर सिस्टम की, इवन ग्राउंड लेवल तक है। गांव में भी आंगनवाड़ी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ये इनिशिएटिव लेती हैं, गवर्नमेंट के इन प्लान्स को गांव तक पहुंचाने का काम करती हैं, बहुत छोटी छोटी स्किट्स करके, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स करके, नुक्कड़ नाटिका, ये सब क्या, दीज आर द वेज, ये सब ऑडियो विजुअल मेथड्स हैं। इवन जो प्रिंट मीडिया है, हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, हमारी मैगजीन्स हैं, ये प्रिंट मीडिया भी हेल्प करता है गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को आम जनता तक पहुंचाने का, राइट। फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस अवेयरनेस कैंपेन्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, सेक्स एजुकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स टू प्रोवाइड द अवेयरनेस to the students. Okay, the students who are in the adolescence age, they must be educated about the reproductive health. Now what is adolescence? The stage after completing the puberty when the individual becomes sexually mature is called adolescent age. Okay, जब वो चाइल्डहुड से निकलकर एडल्टहुड की तरफ आ रहा है उस एज को एडोलेसेंस एज कहते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि एडोलेसेंस प्रोग्राम्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, जिसमें सेक्स एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन जो है प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को, राइट। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence and related changes during the adolescence, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, ये सभी ऐसे एरियाज हैं जिनकी जानकारी स्टूडेंट लेवल से ही, एडोलेसेंट एज से ही होनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर्स आपके साइंस के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये बहुत ही सोच समझ के इंट्रोड्यूस किए गए हैं बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज से इन सभी एस्पेक्ट्स के लिए एजुकेट करने के लिए। ओके, सो नाउ वी कम टू एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक का नाम है। ठीक है, इट इज अ प्रीनेटल टेस्ट। प्रीनेटल मतलब बच्चे के बर्थ से पहले ही हो जाने वाला टेस्ट है। ठीक है, इस टेस्ट को क्यों किया जाता है? ये टेस्ट को किया जाता है ये जानने के लिए कि जो फीटस यूट्रस में डेवलप हो रहा है मदर के, क्या वो हेल्दी है, उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है। वी नो वी हैव गॉट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक क्रोमोसोम जो है कुछ पर्टिकुलर जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स कुछ पर्टिकुलर करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हर एक जीन एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट डिफेक्टिव है, तो उस पर पाई जाने वाली जीन्स भी डिफेक्टिव होंगी।
और वो जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी फिर, अगर वो चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो वो उसका एक्सप्रेशन डिफेक्टिव होगा। सच एम्ब्रियो विल बी मालफॉर्म्ड, ठीक है, उसका मालफॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब, और वो प्रॉपर इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होगा। तो अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में ऐसा कोई डिफेक्ट पता चल जाता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो इट इज नॉट करेक्टेबल, तो ऐसे में उस एम्ब्रियो को अर्ली स्टेज में ही अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये डिसीजन कि एम्ब्रियो हेल्दी है या नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसको लेने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक में असल में होता क्या है, आप सबको मैंने बताया था कि एम्ब्रियो के आसपास एक कैविटी होती है, जब वो यूट्रस में इम्प्लांटेड है उस कैविटी का नाम एमनियन है। एमनियन कैविटी के अंदर एक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें एम्ब्रियो सस्पेंडेड है। एम्ब्रियो की बॉडी को बाहर को वो टच कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, एंड some of the cells of the embryo they fall in the amniotic fluid, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फ्रिक्शन में है तो एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो के सेल्स जो हैं वो गिर जाते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड का अगर कुछ पार्ट हम निकालते हैं एम्ब्रियो के अंदर से, और फिर उसके अंदर से सेल्स निकालकर, सेल्स को ब्रेक ओपन करके उसके क्रोमोसोम्स के पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो हम ऐसी इमेज जनरेट कर पाएंगे जैसी आपके सामने दिखाई हुई है। इसे कहते हैं कैरियोटाइपिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। देख रहे हैं आप, पूरे 23 क्रोमोसोम, फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड से लेके 23rd पेयर तक सारे दिखाए हुए हैं। तो इनका अरेंजमेंट कर लिया जाता है, कैरियोटाइपिंग कहते हैं इसको, और उसके बाद स्टडी किया जाता है इसको एक करेक्ट कैरियोटाइप से, स्टैंडर्ड कैरियोटाइप से इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जिस भी एम्ब्रियो की कैरियोटाइपिंग की है हमने, उसको स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग से कंपेयर किया जाता है, देखने के लिए कि हर एक क्रोमोसोम का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, लेंथ है, बराबर है या नहीं है। उसके मेंबर्स, हर एक क्रोमोसोम पेयर में 2 ही मेंबर है, कहीं एक मेंबर कम तो नहीं हो गया, कहीं एक मेंबर ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ये सब चीजें हम एमनियोसेंटेसिस के रिजल्ट में चेक करते हैं। तो ये क्या है? इट इज अ प्रीनेटल टेस्ट इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज रिमूव्ड from the amniotic sac surrounding the fetus for testing. It is a technique used to find out the chromosomal abnormalities in the developing embryo by using the amniotic fluid. It is, ठीक है। तो अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो, यहाँ हमने एक कैरियोटाइपिंग स्टडी की, एमनियोसेंटेसिस का रिजल्ट देखा। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये 21st पेयर क्रोमोसोम का है, इसमें 2 ये पर्पल कलर के मेंबर्स तो इसके अपने हैं जो सही हैं। एक तीसरा मेंबर फालतू में आ गया है, देखिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम। और जब 21st क्रोमोसोम के 2 मेंबर ना होके 3 हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, ये एक सिंड्रोम को जनरेट करती है, डाउन सिंड्रोम। सच एन इंडिविजुअल विल बी डिफेक्टिव इंडिविजुअल, ओके। इसमें डिफेक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलप होंगे, और अगर टाइम रहते ही एमनियोसेंटेसिस में ही पता चल जाता है ये, तो हम इस एम्ब्रियो का डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अबॉर्ट कर देना चाहिए, इट शुड नॉट टेक बर्थ, ओके। सो दिस इज अ प्रीनेटल टेस्ट इन विच सच डिफेक्ट्स कैन बी फाउंड। देखिए यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम दिखाया हुआ है, 18th क्रोमोसोम में 3 मेंबर आ गए हैं, ट्राइसोमी 18th क्रोमोसोम में हो गई है। यहाँ देखिए टर्नर सिंड्रोम दिखाया हुआ है, जो 22 क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स वो तो बिल्कुल सही है। 23rd क्रोमोसोम में एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, ना वाई है और ना दूसरा एक्स है। एक्स के साथ ओ मतलब 0, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम एक ही मेंबर है इसमें, दूसरा मेंबर ही नहीं है सेक्स क्रोमोसोम का। तो ये टर्नर सिंड्रोम है, इसे एक्स ओ क्रोमोसोम का जो इम्परफेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंड्रोम्स जो है, ये किसका रिजल्ट होते हैं? ये रिजल्ट होते हैं किसी ना किसी क्रोमोसोमल डिफेक्ट का, ठीक है। और ये डिफेक्ट हम पता लगा सकते हैं प्रीनेटल टेस्ट करके, एमनियोसेंटेसिस जिसका नाम है। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल टेस्ट है, हमने बर्थ से पहले ही पता लगा लिया। और अगर ये बहुत जल्दी पता चल जाता है तो ऐसे एम्ब्रियो को हम अबॉर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसा डिफेक्टिव चाइल्ड बर्थ ना ले, क्योंकि अगर ऐसे चाइल्ड का बर्थ हो गया, इट विल बी अ सफरिंग फॉर द पेरेंट एज वेल एज द चाइल्ड, ठीक है। लेकिन ये टेक्निक जो है, ये मिसयूज की जा रही है टेक्नीशियंस द्वारा, लोगों द्वारा। कैसे? आप देख सकते हैं इस टेक्निक में क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो दिख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 23rd क्रोमोसोम का स्टेटस भी पता चल रहा है। देखिए 23rd क्रोमोसोम यहाँ हमें पता चल रहा है कि XX है तो फीमेल है, XY है तो मेल है, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है। तो इससे ये भी जानकारी मिल जाती है कि जो एम्ब्रियो है, ये आगे चल के मेल ऑर्गेनिज्म बनाने वाला है कि फीमेल। और आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी में द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आर मोर प्रेफर्ड, मेल चिल्ड्रन आर प्रेफर्ड, ठीक है।
तो ये हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसकी ये एक थिंकिंग है, एक गलत धारणा है कि मेल चाइल्ड जो होता है ये प्रेफर किया जाता है। तो इसीलिए अगर स्टीरियोटाइपिंग में ये पता चल जाए कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल, फीमेल चाइल्ड अगर पता चल गया कि है, तो उसको कोई भी फेवर नहीं करेगा। एंड देयर आर मेनी कंजर्वेटिव फैमिलीज हु वुड नॉट लाइक अ फीमेल टू टेक बर्थ इन देयर फैमिलीज, एंड बिफोर बर्थ ओनली दे विल ट्राई टू अबॉर्ट सच अ फीमेल फीटस। इसे फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। फीमेल फीटस का जो उसको किलिंग किलिंग द फीमेल फीटस। ठीक है, तो इसको मिसयूज कैसे किया जाता है? टू चेक द फीमेल fetal sex determination based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. And suppose the developing fetus is female fetus, it might be aborted. ओके, तो इसका फीमेल फीटिसाइड का ये एक कारण बन सकता है। इसीलिए जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको ये उनसे एक ओथ ली जाती है, उनसे उन्हें ये कहा जाता है कि ये अंडरटेकिंग दे कि वो कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन रिवील नहीं करेंगे पेरेंट्स को, और ये टेक्निक को सिर्फ यूज करेंगे क्रोमोसोमल डिफेक्ट की जानकारी देने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम ऑलरेडी रीच कर चुके हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, रिसोर्सेज आर फॉलिंग शॉर्ट, दैट इज इंक्रीजिंग द कंपटीशन अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉपुलेशन के इंक्रीज को रोकना पड़ेगा। वो कैसे रोकेंगे हम? बाय कंट्रोलिंग द लाइव बर्थ्स। ठीक है, बर्थ कंट्रोल करके। improved quality of life of people, increased health facilities and better living conditions, ये 3 कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि चीफ रीजंस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। पहला कारण है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी हमें हेल्थ केयर में फैसिलिटीज मिल गई हैं, या हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी इतनी फैसिलिटीज अटेन कर चुकी है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बड़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, और दूसरा हमारे हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत इंप्रूवमेंट की है, बहुत एडवांसमेंट्स की हैं, इसलिए जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो इंक्रीज हो गई है, एवरेज एज इंक्रीज हो गई है इंडियन इंडिविजुअल्स में। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन में। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने लिविंग कंडीशंस को बेटर कर दिया है, और इन्होंने एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट कॉज किया है ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड ज्योमेट्रिकली बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। और रीजन क्या है? डेथ रेट रैपिडली लो हो गया है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ, पहले क्या होता था, बर्थ के टाइम, पार्चुरेशन के प्रोसेस के टाइम मेडिकल कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड नहीं होती थी। जो फीमेल्स हैं उनको प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस नहीं मिलती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, इसीलिए पार्चुरेशन के टाइम कॉम्प्लिकेशंस आने पे जो टू बी मदर्स हैं उनकी डेथ हो जाती थी, समटाइम्स इवन द यंग वन यूज्ड टू डाई। लेकिन अभी क्या है, बहुत अच्छी जो पार्चुरेशन फैसिलिटीज जो है, चाइल्ड बर्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, इवन एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ आवर विलेजेस। इसीलिए मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम हो गया है। ठीक है, IMR, infant mortality rate. At the time of the birth, the infants used to die because of the lack of healthcare facilities. अब infant mortality rate भी कम हो गया है, बहुत अच्छे से लाइव बर्थ्स हो जाते हैं because of the increased healthcare facilities. ठीक है, तो ये इन सभी रीजंस की वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स ह्यूमन पॉपुलेशन, सॉरी, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन जल्दी बढ़ती है, इसीलिए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है। ये भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, तो और कारण क्या हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? डिक्लाइन इन द डेथ रेट, decline in the maternal mortality rate, decline in the infant mortality rate, ठीक है, and increase in the population of reproductive age group. These are the chief reasons for population explosion in Indian population. अब ये population explosion को रोकने के steps क्या है? Using contraceptive methods. ठीक है, contraceptive methods वो होते हैं जो fertilization को रोकते हैं. They avoid the fertilization. Fertilization नहीं होगी तो population का control अपने आप ही हो जाएगा. They also educate people about the demerits of large family. अवेयर किया जाता है लोगों को
कि लार्ज फैमिली होगी तो सबको प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, सबको लिविंग लाइक कंडीशंस हेल्दी नहीं मिलेंगी, ठीक है, उनको ऑप्शंस कम अवेलेबल होंगे ग्रोथ के, अपने आप को डेवलप करने के, नई अपॉर्चुनिटीज के, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी होगा अगर लार्ज फैमिलीज होंगी, ठीक है, लेस फाइनेंस विल बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, ओके। इंक्रीज इन द मैरिजेबल एज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, बताया मैंने आपको, लीगलाइज कर दिया गया है, मेल्स इनकी लीगल एज 21 ईयर्स है और फीमेल की लीगल एज क्या है 18 ईयर्स। तो मैरिजेबल एज लीगलाइज करना, उनको इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स हैविंग वन और टू चिल्ड्रन, ऐसे लोग जिनको एक या दो जिनके बच्चे हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इज फेवरिंग ओनली टू चिल्ड्रन नॉर्म। अगर किसी का जो थर्ड चाइल्ड होता है तो उस थर्ड चाइल्ड को फैसिलिटीज नहीं मिलती, उसको एजुकेशन लोन, एजुकेशन फैसिलिटीज या फिर कंसेशन इन द फीस, ऐसा कुछ भी थर्ड चाइल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। इवन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द मेटर्निटी लीव एंड द चाइल्ड केयर लीव, ये सब भी थर्ड चाइल्ड के लिए नहीं है। तो ये सभी इसीलिए नॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि people they restrain till the two children, they opt for two children norm, okay. So next is contraceptive methods. Contraceptive methods को डिटेल में हम कल स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता रही हूँ। they are used to prevent the unwanted pregnancies and they also modify the menstrual cycle, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देते हैं ताकि ना फर्टिलाइजेशन हो और ना ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या ट्रेड्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आता है। Ideal contraceptive should be user friendly. It should be easily available in the market. It should be very effective in controlling the population. Okay, it should be effective in controlling the fertilization. It should be reversible when the family or when the parents they want to have a child, then they can stop use contraceptive method and then they can plan their family. Okay, so this contraceptive method is used only till the time the family increase is not planned. Okay, it should not have any side effects, कोई side effect नहीं होना चाहिए contraceptive method का। तो ये 5 मेन फीचर्स हैं जो किसी कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस में या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में होने चाहिए, तभी उसे आइडियल माना जाएगा, तभी उसको यूज करना प्रॉफिटेबल होगा। नाउ असेसमेंट, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसके कॉन्सेप्ट की असेसमेंट के लिए एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द टर्म for prenatal diagnostic technique aimed to know the sex of the developing fetus and to detect the congenital disorders. तो fetus का sex भी इससे पता चल जाता है और congenital chromosomal disorders कोई है तो भी पता चल जाते हैं। ऐसे prenatal technique का नाम क्या है? Yes, try to answer. Within 2 minutes, I'm going to finish the lecture. Yes. Please try to answer. Yes. The name of this technique is amniocentesis. Okay, तो amniocentesis वो, yes, Alice is the first one to answer. तो amniocentesis वो पहली वो टेक्निक है जो कि डेवलपिंग फीचर्स के कंजेनिटल डिसऑर्डर्स को और सेक्स को डिटरमाइन करती है। यस, संगीता, हरिओम, जो ऑल आर करेक्ट। यस, रसना सही है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आकांक्षा उपाध्याय करेक्ट, पंकज, अच्छा पंकज ने सेकंड क्वेश्चन को कर दिया, वेरी गुड। नेम द फ्लूइड फ्रॉम व्हिच फीटल सेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस। The answer is amniotic fluid. Pankaj Rajput is first one to correctly answer it. Yes, amniotic fluid is the fluid from which fetal cells are extracted for chromosomal analysis in the amniocentesis technique. Question number 3. Yes, question number 3 पे आ जाए। Why has the government imposed a statutory ban on amniocentesis? Because amniocentesis also gives the information about the status of sex chromosomes and it leads to फीमेल फीटिसाइड्स, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया है। यस, निमिषा हैज गिवन करेक्ट आंसर, आकांक्षा, हरिओम, सत्यम, एमनियोटिक फ्लूइड सही आंसर है, संगीता, नेहा पोखरियाल, राधा, राजीव बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, विद्या बिल्कुल सही बोल रहे हो, एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल सही है। यस, जीवा हैज गिवन द करेक्ट आंसर टू थर्ड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स, बिल्कुल सही, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, गिव द टर्म फॉर रैपिड पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं भैया इसको, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या टर्म दी गई है? यस यस, हरिओम थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए क्या टर्म है?
इट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यस, निमिषा ने थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बिल्कुल सही बात, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सो यहाँ पे मैंने आपको इन क्वेश्चंस के देखिए सही आंसर दे दिए हैं। असेसमेंट की एक्सरसाइज विद आंसर्स है आपके रेफरेंस के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक सो फार। अभी तक सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन स्टडी की है, कल हम इसके टेक्निकल पार्ट पे आएंगे इस चैप्टर के। सो स्टडी द चैप्टर टिल द टॉपिक वी हैव कवर्ड एंड कम अप विद द डाउट्स इफ एनी। यस, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, वेरी गुड। Big clap for all of you. Okay, students. Now I finish the session here only. Take care. Take care of yourself and your family. Stay safe at your homes. Thank you.